إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں دراصل جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. آئیے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیتے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پروردگارا، کل قیامت کے روز مجھے رسوا نہیں کرنا. اللہ کل قیامت کے روز مجھے اللہ ذلیل نہیں کرنا، بلکہ عزت والی اللہ زندگی نصیب فرما. قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس میں کئی لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا اور کئی لوگوں کو عزت بخشی جائے گی. کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا اور کئی لوگوں کو اللہ ناکام کرے گا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے کل قیامت کے روز رسوا نہیں کرنا. اور آگے یہ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون. وہ کون سا دن ہوگا جس دن نہ انسان کا مال کمائے گا نہ انسان کی اولاد کمائیں گے. دونوں کی سراسر نفی کر دی گئی ہے. دونوں کام نہیں آئیں گے. کام کیا آئے گا؟ پھر محنت کس پر کرنی ہے مجھے اور آپ کو؟ اسی حوالے سے دو باتیں کہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. کہا پھر نہ مال کام آئیں گے نہ اولاد کام آئیں گے، تو کام کیا آئے گا؟ دنیا میں محنت کس پر کرنی، اصل اس پر توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو
पाकीज़ा दिल लेकर के अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, साफ दिल लेकर के अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, सुथरा दिल लेकर के अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, ऐसा दिल रखने वाला शख्स कल क़यामत के रोज़ कामयाब होगा। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह हमारे दिलों का तज़किया फरमाए। तो अब आप इन बातों से आपने समझ लिया है, कुरान करीम की आयत करीमा के तर्जमे के हवाले से जो पैगाम मैं देना चाहूँगा वो है दिल के हवाले से गुफ्तगू होगी। ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में बहुत बड़ी निशानी है जो हमारे सीने में बाएं जानिब धड़कता है, जिसको दिल कहा जाता है। और अरबी ज़बान में इसी को क़ल्ब कहते हैं। क़ल्ब, क़ल्ब के माना उलटना पलटना। कभी दिल उलटते रहता है, पलटते रहता है। कभी किसी से दिल में मोहब्बत होती है, कभी किसी से दिल में नफ़रत होती है, कभी दिल में किसी पर प्यार आ जाता है, कभी दिल में किसी पर गुस्सा आ जाता है। ये हमेशा यकसा नहीं रहता है। यही वजह है ना, वो मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर के फरमाते, या रसूलुल्लाह आपकी महफिल में रहता हूँ तो जन्नत याद आती है, जहन्नम याद आती है। देख रहे, ये सहाबे कराम की मजलिसें हुआ करती थी। कि आपकी महफिल में रहता हूँ तो जन्नत याद आती, जहन्नम याद आती, अज़ाब कब्र का तज़करा होता है तो जन्नत की नेमतों का तज़करा होता है। और आपकी महफिल से उठ करके चले जाता हूँ, घर में कारोबार में बीवी बाल बच्चों में भूल जाता हूँ। या रसूल अल्लाह ऐसे क्यों होता है? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इसी को दिल कहते हैं। ये पलटते रहता है, ये हमेशा यकसा नहीं रहता है। आज किसी आदमी के बारे में आपका नजरिया कुछ है, कल कुछ और रहेगा आपका नजरिया। ऐसा होता है भाई। तो ये एक अल्लाह तो बात मैं आगे कुछ ले जाऊंगा, क्योंकि बड़ी अहम ये बातें हैं और कई जुमा लग सकते हैं मुकम्मल करने में। लेकिन नहीं, फिर इंशाअल्लाह 4-5 जुमा के बाद फिर रिमाइंड करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए तो मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि दिल ये बड़ी हैसियत वाली चीज़ है। दिल को शरीयत ने बड़ा ऊँचा दर्जा, बड़ा ऊँचा मकाम दिया है। जैसे हमारे जिस्म है, हमारे जिस्म में कई पार्ट हैं, कई हिस्से हैं, आज़ा हैं, जवारे हैं। हमारी शरीयत ने फरमाया दिल ये मरकजी मकाम रखता है, ये बादशाह है, बादशाह। और हमारे जिस्म के जितने आज़ा हैं ना, पार्ट हैं, ये सब के सब उसके आवान हैं, मददगार हैं और उसके इशारे पर काम करते। दिल कहता है कुछ नहीं कहना तो ज़बान खामोश हो जाती। दिल कहता है हाथ चलाओ तो हाथ चलाना शुरू कर देते। दिल कहता है वहां जगह जाओ तो वहां जाना शुरू कर देते हैं। हमारे जिस्म के जो सारे आज़ा है ना, ये दिल के इशारे पर नाचते हैं, यूं कह लें, ये दिल के इशारे पर काम करते हैं। जैसा दिल का फरमान होता है वैसे हमारे हिस्से काम करते हैं। सुनिए ना, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसलिए फरमाया ना, सुनो, अला व इन्न फिल जसद मुज़ग़ा इदा सलुहा सलुहल जसद कुल्ला व इदा फसदत फसदल जसद कुल्ला अला वहियल क़ल्ब। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस्म में एक गोश्त का लुथड़ा होता है, बाएं जानिब होता है। कितनी मर्तबा धड़कता है ये आप डॉक्टरों से जाकर के पूछो। एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, एक दिन में कितनी बार धड़कता है, एक हफ्ते में, एक महीने में कितनी बार धड़कता है। दिल एक ऐसा जिस्म का एक ऐसा आला है, सुभान अल्लाह, इस पर मेहनत करो, अल्लाह की कसम है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। शायर ने कहा, दिल के बिगड़ने से इंसान बिगड़ता है, दिल के बिगड़ने से इंसान बिगड़ता है। जिसने इसे संवार लिया वो संवर गया, जिसने इसे संभाल लिया वो संभल गया। यही वजह है अंबियाए किराम जो दुनिया में आए हैं ना, उनकी बेइज्जत का मकसद क्या था जानते हैं? एक तो किताब व हिकमत की तालीम देना। वयुज़क्कीहिम, सारे अंबिया जितने आए हैं ना, सबों ने इंसान के दिलों पर
محنت کی ہے، دلوں پر محنت کی ہے۔ آج بھی میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے، انسانیت کو بنانے کے لیے دل پر محنت کرو۔ آپ نے کسی کے دل کو سجا دیا، سنوار دیا، ایک نسل کو آپ نے تیار کر دیا، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے نبی محمد اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا دیکھو انسان کے جسم میں خون کا لتھڑا ہوتا ہے، اگر یہ صحیح رہا تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ دل اگر جوان ہے انسان جوان ہے، دل اگر بیمار ہے انسان بیمار ہے، دل اگر کمزور ہے انسان کمزور ہے، دل اگر پست ہمت ہے تو انسان پست ہمت ہے۔ ایک آپ دیکھیں، ایک انسان ہے بڑا موٹا تازہ تگڑا ہٹا کٹا ہے، لیکن دل کا وہ مریض ہے، تو وہ بھلے ہی باہر سے کتنا اپڈیٹ کیوں نہ نظر آئے، لیکن دل کی دھڑکن لگی رہتی ہے۔ کب اس کے دل کے دروازے بند ہو جائے، دل دھڑکنا بند ہو جائے، وہ انسان کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وہی القلب، کہا کہ یہ جو حصہ ہے نا، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا نا، یہ جو خون کا لتھڑا ہے نا جسے دل کہا جاتا ہے، اگر یہ صحیح ہے نا انسان صحیح رہتا ہے، اگر یہ بگڑ جائے نا انسان بگڑ جاتا ہے، انسان خراب ہو جاتا ہے۔ اگر دل نے تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا بند کر دیا، انسان کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ غور کیجئے آپ، سبحان اللہ، یہ برابر چلتے رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، آرام نہیں کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں جتنے پارٹ اور حصے ہیں اور اعضاء اور جوارے ہیں، سارے آرام کرتے ہیں، دل کو کبھی آرام نہیں ملتا ہے، یہ ہمیشہ چلتے رہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اگر چلنا چھوڑ دیا تو انسان کی سانسیں رک جاتی۔ الغرض میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے، باتیں بہت ساری ہیں، دل یہ ہمارا جب اتنا اہم اور مرکزی رول ادا کرتا ہے تو دل کبھی کبھی سخت بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے سخت ہو جاتا جانتے ہیں؟ یتیم بچہ سامنے سے گزر رہا ہے، کوئی غریب انسان سامنے سے گزر رہا ہے، کوئی فقیر انسان سامنے سے گزر رہا ہے، ہمیں ترس نہیں آتا ہے، ہمیں رحم نہیں آتا ہے، یہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، دل یہ سخت ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی کو دور کرنی چاہیے۔ ایسے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں جنہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آ کر کے یہ شکایت کرتے تھے، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، آپ کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہے، آپ اپنے دل کی زمین کو ٹٹولو، کہیں بنجر تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں دل سخت تو نہیں ہو گیا ہے، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، نمازیں پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، ذکر و اذکار میں مزہ نہیں آ رہا ہے، فجر کی پابندی کا خیال نہیں ہے، اپنے دل کی زمین کو چیک کرو، کہیں تمہارا دل سخت تو نہیں ہو گیا ہے۔ کیا بات بتائی جائے؟ قرآن کریم پڑھیے، پہلی سورہ ہے سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہودیوں کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے نا، اللہ نے یہ بھی فرمایا، یہودیوں پر جو اللہ کا عذاب آیا نا، ایک عذاب یہ بھی تھا، ثم قست قلوبکم من بعد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے یہودیوں کے دلوں کو سخت کر دیا تھا، اتنا سخت کر دیا تھا، رحم و کرم اللہ نے ان کے دل سے نکال لیا تھا، رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سود کھاتے تھے، سود لیتے تھے اور سود دیتے تھے، اور جس انسان کو بھی سود دیا کرتے تھے وصولی کرنے میں بڑی جلدی کرتے تھے، وہ مرتے رہتا تھا، آنسو بہاتا تھا، روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، پر رحم نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ جانتے ہیں دل سخت ہو جاتے ہیں، اس کا علاج کرو میرے بھائیوں، دلوں میں نرمی لاؤ،
लाओ, दिलों में रिक्कत लाओ, दिलों में मिठास लाओ, दिलों में प्यार लाओ, दिलों में मोहब्बत लाओ। ये दिल अल्लाह ने इसलिए दिए हैं, नफरतों के लिए नहीं, अदावतों के लिए नहीं, दुश्मनियों के लिए नहीं, नफरतों को पालने के लिए नहीं। अल्लाह ने दिल दिया है, मोहब्बत करो। अल्लाह ने दिल दिया। आइए मैं बात देखो, बात मुझे जो कहनी है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वो मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो दिल की जो हैसियत होती है ना, एक बादशाह की तरह होती है। बादशाह जैसे बादशाह ये पूरी रियाया पर अपना कंट्रोल रखता है ना, ऐसे दिल सारे आज़ा पर, सारे हिस्से पर दिल का पूरा कंट्रोल होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बेशुमार आयात और अहादीस मौजूद हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने कैसे कैसे दिलों का तस्करा किया है, पढ़ना चाहिए। ईमान वाले दिल, बेईमान दिल, बेरहम दिल, ईमान से महरूम दिल, सख्त दिल, जंग आलूद दिल, काला दिल, उजला दिल, कैसे कैसे कुलूब और दिलों का सुभान अल्लाह 100 से ज़ायद मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। दुनिया में ऐसे ऐसे इंसान के दिल होते हैं और ऐसे ऐसे दिल के मालिक इंसान हुआ करते हैं। अल्लाह के कलाम को पढ़ना चाहिए, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़नी चाहिए। मैंने एक सहाबी की बात की थी, एक सहाबी रसूल, वो आराबी थे, वो देहात के रहने वाले थे या किसी और इलाके के थे। वो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त हो गया है। उन्होंने चेक किया, अपने दिल को चेक किया, पता चला उनका दिल सख्त हो गया है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल सख्त हो गया है, मैं क्या करूं? कोई इलाज बताइए, कोई हल बताइए। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा? पहला काम आपने क्या फरमाया? ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैया। कहा दिल को अगर नरम करना है ना, पहला काम ये करो, नेकी के हर काम को करो, दिल में नरमी आ जाएगी, दिल में नरमी आ जाएगी। नेकी का जो भी काम मिले, खैर का जो भी काम मिले, भलाई का जो भी काम मिले, पहले उसे कीजिए। और आप सलाम ने क्या फरमाया? वमसह बिरासिल यतीम, यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरो। दिल में नरमी आती है, मोहब्बत आती है, शफकत आती है। का यतीम बच्चा नजर आए, उसके सर पे हाथ फेरो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को नरम कर देगा। कुर्बान जाए, यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरने से अल्लाह दिल को नरम कर देता है। जो आदमी किसी यतीम बच्चे की किफालत करेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, जवान करेगा, शादी ब्याह करेगा, उसके क्या फजाइल होंगे, सुभान अल्लाह। अरे सर पर हाथ फेर देने की वजह से अल्लाह दिलों को नरम कर देता है। और जिसने किसी को पढ़ा दिया, जवान कर दिया, तालीम और तरबियत का इंतजाम कर दिया, क्या इंतजाम होगा, क्या मकाम होगा, क्या मर्तबा होगा। अल्लाह से मिलकर के दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस भरी पड़ी हैं। आइए एक दो बातें बता करके, एक दो मिसालें दे करके मैं अपने खुतबे को वक्त पर खत्म करूं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देखो, इंसान की जो पहचान और इंसान की जो कीमत होती है ना, इंसान के दिल से होती है। दिल अगर साफ है, इंसान भी साफ है। दिल अगर वजनदार है, इंसान भी वजनदार है। दिल अगर हल्का है, इंसान भी हल्का है। दिल अगर बेवजन है, इंसान भी बेवजन है। दिल की कीमत नहीं है, इंसान की भी कीमत नहीं है। एक मिसाल दूं मैं आपके सामने, एक मिसाल ले लो अबू लहब और एक मिसाल ले लो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या अबू लहब कैसा था? गोरा चट्टा था, शोलों वाला था, अंगार वाला था, वो चमकता था, लेकिन दिल साफ न होने की वजह से, दिल में सियाह और नुक्ता और दिल काला होने की वजह से अबू लहब के बारे में कुरान ने क्या कहा? तब्बत यदा अबी लहब व तब। और बिलाल हबशी को ले लो, चेहरा काला कलूटा है, होठ मोटे हैं, भद्दी शक्ल सूरत के मालिक है, दिल साफ है, दिल साफ है। इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा दर्जा दुनिया में प्यारे नबी मोहम्मद
रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी है। और ये वो वाहिद सहाबी रसूल है। तारीख इस्लाम उठा करके देखिए, काबा की छत पे खड़े होकर के अज़ान अगर किसी ने दिया, वो बिलाल हबशी ने दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह उनके मकाम को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये मैंने एक मिसाल दी है। वो हदीस सुनिए ना, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता है, किस शक्ल के आप मालिक हैं, किस सूरत के आप मालिक हैं, गोरे हैं या काले हैं, अफ्रीकी है या हबशी है, नारंगी है या कौन है, अल्लाह ये नहीं देखता है। किस शक्ल सूरत के मालिक है ये नहीं देखता है। आपका जिस्म, आपका कदो खामत, आप किस तबीयत के और कितने वजन के मालिक, अल्लाह ये नहीं देखता है। वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है। ये मशहूर तरीन रिवायत है। और दूसरी बात यह है, जानते दिल ही एक ऐसी जगह है जहां अच्छाइयां भी आती है और बुराइयां भी आती हैं। ईमान कहां होता है? दिल में। तौहीद कहां होता है? दिल में। मोहब्बत, यकीन, तवक्कल, खौफ, खशियत, खुशू और खुजू, आजिजी और इनकिसारी, ये सब कहां है? दिल में। दिल में रहता है। और वहीं पर आप देखें, ये अच्छाइयां हैं, जितनी बड़ी बड़ी नेकियां हैं, बड़ी बड़ी अच्छाइयां हैं, ये सब दिल में है। और वहीं पर शिर्क कहां? दिल में। कुफ्र कहां? दिल में। निफाक कहां? दिल में। बुग़्ज़, हसद, नफरत, कीना, कपट, अदावत, दुश्मनी, नफरत कहां? सब दिल में होता है। देख रहे, आप अपने दिल को कैसा बनाना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फी क़ुलूबिहिम मरज़ फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। अल्लाह ने कहा इनके दिल में बीमारी आ गई ना, अल्लाह ने बीमारी को बढ़ा दिया। जलते रहो इसी बीमारी में। या यहूदियों के बारे में अल्लाह ने कहा, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने कहा, जलते रहो मुसलमानों की तरक्की को देख करके, जलते रहो मुसलमानों की कामयाबी को देख करके, तुम्हारे दिल की बीमारी बढ़ती जाएगी और मुसलमान की तरक्की होती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं यहाँ पर दो बातें आपसे कहूँगा इंशाअल्लाह। वक्त बड़ी जल्दी निकल गया, मुझे खुद बड़ा अफसोस है। और जिस मौजू को मैंने शुरू किया, अभी मैं तो दाखिल हो रहा हूँ। मैंने कहा इस हवाले से अल्लाह के कलाम में बड़ी प्यारी प्यारी बातें मौजूद हैं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ जुमात में एक दो बातें और मुझे करनी है जो आज मुझे करनी थी। अल्लाह की तौफीक से वो बला टल गई है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह मुसलमानों पर रहमो करम नाजिल फरमाए। पिछले 2 दिन से हम मगरिब के नमाज में और मगरिब के दर्स में दुआ कर रहे थे। फजर में आज हमने सोचा आने वाले फजर में कुनूत नाज़िला पढ़ेंगे मुसलमानों के हक में, लेकिन अल्लाह ने मुसीबत टाल दी है। अल्लाह से दुआ फरमाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी मुसलमानों के हक में है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह मुसलमानों को आबाद रखे, आबाद रखे। लेकिन मेरी आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती। आइए पहले वो हदीस देखते हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता करके बात मैं ख़त्म करूँगा और आइंदा जुमा इंशाअल्लाह वो बातें रखूँगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह। एक बार की बात है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल, मेरे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सबक है। अल्लाह की कसम है, इस मिंबर से आज तक मैंने जो बातें कही हैं, मैंने अपने आप को हटा करके नहीं कहा है। वो आलिम हो नहीं सकता है जो शरीयत से हट करके जिंदगी गुजारे, वो आलिम नहीं हो सकता है। नमाजें प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी आप भी नमाजें पढ़िए, नबी के लिए भी नमाजें हैं। सुभान अल्लाह। तो शरीयत की जितनी बातें हैं मैं और आप सब बराबर है, सबके लिए अमल की दुआ करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबे कराम का मजमा लगा हुआ है, बैठे
ये है मशहूर और मारूफ तरीन हदीस। आज भी आप सुने हैं, आने वाले फिर कई सालों के बाद किसी और आलिम की ज़बानी सुनेंगे, किसी और जलसे में भी सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबे कराम का मजमा लगा हुआ है। इसी में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा पीछे पलट के देखो, एक जन्नती आदमी आ रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ये मकाम सारे भाइयों को नसीब फरमाए, माँ बहनों को न छोड़ो भाई, अल्लाह उन्हें भी ये मकाम नसीब फरमाए। बड़ी मेहनत और जुस्तजू से आती है वो, अल्लाह बताता हूँ। 12 बजे से पहले पहले उम्मत की माएँ बहनें के कदम इस मस्जिद में पड़ जाते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह ताला, और आप सब के भी आने जाने को अल्लाह कबूल फरमाए। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, सहाबा पलट के देखो, जन्नती आदमी आ रहा है। पलट करके देखा सहाबे कराम ने, एक सहाबी आए हैं, हाथ में जूता है, कंधे पर रुमाल है, और मस्जिद में दाखिल हुए, अस्सलामु अलैकुम कह करके दाखिल हुए और नबी की मजलिस में बैठ गए। साहबे कराम ने भी गौर से देखा, मजलिस खत्म हो गई, साहबे कराम ने हल्के में ले लिया। दूसरे दिन भी नबी की मजलिस लगी हुई है, सुभान अल्लाह। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई पलट करके देखो, कोई जन्नती आ रहा है। साहबे कराम ने पलट करके देखा, वही सहाबी रसूल दोबारा उसी अंदाज में आए हैं, हाथ में चप्पल है और कंधे पर रुमाल है, और अस्सलाम वालेकुम कह करके दाखिल हो रहे। साहबे कराम अब सीरियस हो गए, अरे कल भी नबी ने कहा जन्नती है, आज भी नबी ने कहा जन्नती है। साहबे किराम ने इस मामले को संगीन से ले लिया। तीसरा दिन आया, वही मजलिस, वही सहाबे कराम, वही इरशाद प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का। पीछे पलट के देख लो भाई, एक जन्नती सहाबी आ रहे हैं। लोगों ने पलट करके देखा, वही सहाबी वही अंदाज में आए हैं। अब एक सहाबी रसूल को शौक पैदा हुआ। क्या शौक पैदा हुआ? चलो इनकी सोहबत में रह करके देखूंगा ये काम क्या करते हैं। अल्लाह की कसम है, यही दिल अल्लाह हमें नसीब फरमाए। हम दुनिया में किसी के मकाम को देख करके कभी जलना नहीं, कभी तरक्की नहीं करना। अगर कोई इस मकाम का है, उसकी तरह बनने की कोशिश करो, अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। जल करके क्या फायदा, नफरत करके क्या फायदा, हसद करके क्या फायदा? कोई फायदा है? अल्लाह ने दुनिया में किसी को मकाम दिया है, दर्जा दिया है, मंजिलत दी है, बुलंदी दी है। दिल में शौक पैदा करो, इंशाअल्लाह मैं भी उसकी तरह बनूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो सहाबी का शौक देंगे ना, उन्होंने कहा, दिल में ठान लिया कि अल्लाह के नबी ने इतना बड़ा दर्जा दिया है, अब मैं इनके साथ चंद दिन रहूंगा और देखूंगा ये करते क्या है। चुनांचे ये मजलिस से उठे, बर्खास्त हुई, मजलिस उठे, उनके पीछे लग लिए। कहा, मेरे भाई अब मैं आपके मकान में 3 रात क़याम करना चाहता हूं। बोले ठीक है, अच्छी बात है, रह जाओ। ये हमारे लिए शर्फ की बात है कि आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपका मेजबान बनूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये दौर था मेहमान नवाजी का, जब लोग खुद ना खाते थे, औरों को खिला देते थे, खुद ना खाते थे, औरों को खिला देते थे। कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु। गए 3 दिन उनके, मुख्तसर किस्सा अल मुख्तसर, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। गए उनके साथ 3 रात उनके साथ कयाम किया। देखा रात में कोई अलग इबादत है नहीं है, रात में करवट ले रहे हैं सुभान अल्लाह, करवट ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह, करवट ले रहे अल्लाहु अकबर, फजर की नमाज के लिए आ रहे हैं, दिन भर खेती बाड़ी में जा रहे हैं, रात में आ रहे हैं, ईशा नमाज अदा करके वो भी सो गए, ये भी सो गए। ये रात में कंबल हटा हटा करके देख रहे कर क्या रहे हैं। ये हो सकता रात की कोई अलग इबादत हो, लेकिन नहीं, वो भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं, ये भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं। कहा 3 रातें खत्म हो गई। कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके पास से चल रहा हूं, लेकिन चलते चलते एक मैं सवाल करना चाहता हूं। बोले क्या? कहा 3 दिन लगातार प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने अपनी मजलिस में आपको जन्नत की बशारत सुनाई है। क्या काम है भाई? मैंने तो देखा नहीं है। मैंने फराइज की पाबंदी देखी, तहज्जुद का एहतमाम देखा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर सुना, ये तो मैं भी करता हूं। भाई आपके पास अलग कौन सी नेकी है जिसके लिए इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगातार
3 दिन अपनी मजलिस में जन्नत की बशारत सुनाई। उन्होंने कहा सुनो, मैं कोई हट करके काम नहीं करता हूँ। अल्फाज सुन लीजिए, उनके अल्फाज है, सुभान अल्लाह, सहाबी के अल्फाज है, वो अंसारी सहाबी थे। उन्होंने कहा ला अजिदु अलैया अहदुम मिनल मुस्लिमीना फी नफ्सी गिश्शौ वला हसदन अला खैरन आताहुल्लाहु इय्या। कहा मेरा दिल दुनिया के सारे मुसलमानों के हवाले से पाक है, साफ है। वो अफ्रीका का रहने वाला हो, ईरान का रहने वाला हो, तुरान का रहने वाला हो, अफगानिस्तान का रहने वाला हो, जंगल में रहने वाला कोई भी मुसलमान है, मेरे दिल में तासुब नहीं है, दिल मेरा साफ है, साफ। मेरे दिल में किसी मुसलमान के हवाले से कोई हसद नहीं है, कोई कीना नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई अदावत नहीं है। सहाबी ने सुन करके कहा अल्लाह की कसम है, ये तुम्हारे जैसा दिल हम नहीं ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते। आज हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, किसी के गम में शरीक होकर के गम में शरीक होकर के तसल्ली देना, यह हर एक को आता है। उसके खुशी के लम्हात में शरीक होकर के ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कहीं ना कहीं हसद की आग लग जाती है, कहीं ना कहीं हसद की आग लग जाती है। उसकी तरक्की को देख करके दुनिया में कभी ऐसा मत करो, जैसे गम में बराबर शरीक होते हो ना, खुशी में भी ऐसे शरीक हो। एक कारोबार तेरा बढ़ गया है, अल्लाह की कसम है, दिल से दुआ है 10 कारोबार बढ़ जाए इंशाअल्लाह। बोलो, ये दिल पैदा करो। ये दिल अल्लाह को मतलूब है और ये दिल अल्लाह को पसंद है। अल्लाह से मिल करके दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल